سامعین، الحمدللہ وہ گھڑی اب آ پہنچی ہے جس کا آپ شدت سے منتظر ہیں، لیکن انشاءاللہ ابھی کنوینر اجلاس جناب مولانا زید سلفی حفظہ اللہ سے آپ نتائج کا اعلان سنیں گے۔ اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دوں کہ تقریباً 24 معلم یا معلمات نے شہر کانپور کے مختلف حصوں میں جا کر کے سینٹر میں امتحان لیا تھا، اور انسان ہونے کے ناطے ہر ایک انسان کی صلاحیت الگ ہوتی ہے، مزاج الگ ہوتا ہے، ذوق الگ ہوتا ہے، تو ممتحن کے ذوق اور صلاحیت اور سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے نمبر میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کے سامنے جو ٹاپ 10 سب سے امتیازی نمبر پہ فائز لوگوں کا نام آپ کے سامنے آئے گا تو باقی لوگ اس لائق نہیں تھے، میں یہ نہیں کہتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس لائق تھے، لیکن ممتحن الگ الگ ہونے کی وجہ سے کچھ نمبرات کا فرق آ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پہلے ہی اصول و ضوابط میں یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ اگر متعدد لوگ پوزیشن میں آ جائیں گے تو قرآن اندازی کی جائے گی، یعنی پرچی ڈالی جائے گی، جس کا نام نکلے گا قسمت اگر اس کا ساتھ دے تو اسی کو پوزیشن مل جائے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس طریقے کا بھی معاملہ ہو کہ بہت سارے لوگ ٹاپ 10 میں تھے، پہلی پوزیشن میں، دوسری پوزیشن میں یا تیسری پوزیشن میں، اور پرچی ڈال کر کے جس کا نام آیا ہے اسی کو وہ انعام دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس کا نام نہیں آیا تو وہ اس لائق نہیں تھے۔ تو آپ لوگوں نے محنت کی اور اس کے بعد اس میں حصہ لیا آپ نے، اور آپ لوگوں نے بہت اچھا مظاہرہ کیا امتحان میں، اور اس کے بعد جن کو بھی یہ پوزیشن ملی ہے یا انعامات ملنے والا ہے، آپ بہت حد تک قسمت کو بھی اس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ان کا نام نکل آیا اور وہ انعامات سے سرفراز کیے گئے۔ لہٰذا آپ میں سے کوئی بھی جن لوگوں نے بھی اچھا مظاہرہ کیا ہے مایوسی کے شکار نہ ہو، اپنے آپ کو کم ہرگز نہ آکیں، بلکہ آپ اصل انعام جو ہمارے شیوخ نے بتایا آپ کے سامنے کہ آپ نے امتحان میں شرکت کی، محنت کی، دعاؤں کو یاد کیا، یہ سب سے بڑا انعام تھا آپ کے لیے۔ اور باقی یہ تو ایک صرف آپ کی ہمت اور حوصلہ افزائی کے لیے یا ایک نظام کے تحت آپ کو یہ جو رقوم کی شکل میں یا دیگر اور کسی چیز کی شکل میں آپ کو انعام دیا جائے گا، صرف آپ کے حوصلہ افزائی کی خاطر۔ میں اب مزید تاخیر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ مولانا زید سلفی حفظہ اللہ، کنوینر اجلاس تقسیم اسناد و انعامات، یعنی آج کے پروگرام کے، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور نتائج کا اعلان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سابقوا الی مغفرۃ وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض۔ معزز مہمان گرامی، علماء کرام، شرکائے مسابقہ اور دیگر حاضرین کرام، تمام قسم کی تعریفات، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اس کی مختصر حمد و ثنا کے بعد اس کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ محترم سامعین اکرام، میں وقت کے مطابق بہت لمبی گفتگو نہ کر کے مختصر انداز میں نتائج کے قریب پہنچوں گا، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرات کے جنہوں نے اس مسابقے میں حصہ لیا، شرکت کی اور ایک امتحان دیا، ان کے نتائج پیش کروں گا۔
सामीन इकराम, मैं ये बात समझ सकता हूँ कि हर वो शख्स जिसने इस मुसाबके में हिस्सा लिया है वो इस बात का मुतमन्नी है और उसको बेकरारी है कि उनके नताइज जल्द अज जल्द पेश किया जाए कि हम में से कौन कामयाब हुआ और कौन नाकाम हुआ। लेकिन ये बात मैं बता देना मुनासिब समझता हूँ कि हकीकत में कामयाब वही शख्स हुआ जिसने इन दुआओं के ज़रिए से या इस अमल के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़रत को तलब किया या अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़रत को चाहा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत जैसी अजीम नेमत को चाहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, साबिकू इला मग़फ़िरतिन व जन्नतिन अर्दुहा का अर्दिस समा वल अर्द। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह की बख्शिश, अल्लाह की मग़फ़रत की जानिब दौड़ो, मुसाबका करो और उसकी जन्नत की जानिब। अलगर्द मोहतरम सामीन इकराम, इसके यानी इस तीसरा इस्लामी इनामी मुसाबका बाउनवान मसनून दुआएं, इसके फ़वाइद लोगों में किस कदर पहुँचे इससे हम बखूबी वाकिफ़ हैं और हमें पता है। खुद मैं भी इस मुसाबके में एग्ज़ामिनर रहा और छोटी छोटी बच्चियों का मैंने खुद भी इम्तिहान लिया। 10 साल से नीचे बच्चियों का मैंने खुद भी इम्तिहान लिया। तकरीबन 5 साल, 6 साल, 7 साल की बच्चियों का इम्तिहान लिया और उस वक्त हकीकत जाने दिली तौर पर बड़ी खुशी हासिल हुई। क्योंकि ऐसी बच्चियां और बच्चे भी आए हमारे सामने जिनको अभी जिनकी ज़बान भी नहीं चल सकती थी, तोतली ज़बान थी, इसके बावजूद उन्होंने मुकम्मल 60 दुआएं और लंबी लंबी दुआएं याद की। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस मुसाबके का फ़ायदा था कि जिस वक्त लोग अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल दिए हुए होते हैं वो दीगर मशगूलियात में मशगूल रहते हैं। अलगर्द मोहतरम सामीन इकराम, ये ज़िलाई जमीयत अहले हदीस कानपुर की जानिब से एक छोटी सी कोशिश थी कि हमारे मुस्लिम माशरे में बच्चे हों या बड़े, उनके हिफ्ज़ में ये दुआएं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं वो आ जाएं और उनको ये दुआएं याद हो जाएं, जिसके ज़रिए से अल्लाह की मग़फ़रत वो हासिल कर लें। बहरहाल, मैं बहुत लंबी गुफ्तगू ना करके अपने असल मौजू पर आता हूँ कि इस मुसाबके में जिन लोगों की पोजीशन आई है उनमें से मैं पोजीशन पुकारूंगा और उनका नाम पुकारूंगा। हर अफराद आकर अपना अपना इनाम स्टेज से ले लेगा। ऊपर से शुरुआत कर रहे हैं, चूँकि इसमें टॉप 10 थे इसलिए 10वें नंबर से शुरू कर रहे हैं। जिनका नाम और पोजीशन होगी वो आकर अपना इनाम खुद आ जाएं। अगर लेडीज़ हैं तो अपने गार्जियन को भेज सकती हैं। 10वें नंबर पर है तराना परवीन वल्द मोहम्मद आबिद अंसारी। ये शुजातगंज से ताल्लुक़ रखती हैं। अगर इनके कोई गार्जियन हैं तो यहाँ आकर इनामात अपने ले सकती हैं। इनके बाद 9वें नंबर पर मोहम्मद वामिक वल्द मोहम्मद वसीक, प्रेम नगर मुसल्ला चमनगंज के ये साहब हैं। इनके बाद 8वें हैं अब्दुल रहमान वल्द अल्ताफ़ आलम, जाजमऊ के रहने वाले हैं। आएँ अपना इनाम ले जाएं। 7वें नंबर पर है रहनुमा अंजुम वल्द निसार अहमद। ये शुजातगंज की रहने वाली हैं। इनके गार्जियन आए, अब इनाम ले जाएं।
छठे नंबर पर मोहम्मद उमर वल्द अब्दुल हई ग्वालटोली के रहने वाले हैं, आए अपना इनाम ले जाएं। पाँचवें नंबर पर हैं शाहीन बानो वल्द गुलबहार अंसारी, ये फैतुलगंज की रहने वाली हैं, गार्जियन को भेजकर अपना इनाम ले जाएं। चौथे नंबर पर हैं मोहम्मद बिलाल वल्द मोहम्मद यूनुस, बाबूपुरवा के रहने वाले हैं, आए अपना इनाम ले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉप 10 में से 7 इनामात हो गए हैं। अभी इनके बाद जो असल अहम इनामात हैं वो 3 इनामात बचे हुए हैं, इंशाअल्लाह उनका नाम भी पेश किया जाएगा। समाअत फरमाएं। तीसरा इनाम है यानी थर्ड पोजीशन है अम्मारा खालिद बिनते मोहम्मद खालिद, फैतुलगंज की रहने वाली हैं, गार्जियन को भेजकर अपना इनाम ले जाएं। दूसरा इनाम है सेकंड पोजीशन कुलथूम अनस बिनते मोहम्मद अनस, ये भी फैतुलगंज की रहने वाली हैं, गार्जियन को भेजकर अपने इनामात ले जाएं। पहली पोजीशन फर्स्ट पोजीशन फायज़ा बिनते मोहम्मद कलीम, जो कि प्रेम नगर चमनगंज से ताल्लुक़ रखती हैं, गार्जियन आए इनके इनामात ले जाएं। बकिया इनके अलावा दीगर और अफराद जिन्होंने इसमें शिरकत की उनको भी इनाम से नवाजा जाएगा और उन्हें भी तस्जीह इनाम दिया जाएगा। फैतुलगंज के लोग आकर इस जानिब ले लें, दाएं जानिब आकर फैतुलगंज के लोग अपने इनामात तस्जीह ले लें, और मर्द हजरात और शुजातगंज के मर्द हजरात बाबूपुरवा और ग्वालटोली जाजमऊ प्रेम नगर के अफराद बाएं जानिब आकर अपने इनामात को ले लें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10 लोगों का नाम आपके सामने आ गया है। बाकी जितने लोगों ने भी मुसाबिक़े में हिस्सा लिया था सबके लिए तशजीह इनाम है और सर्टिफिकेट भी है। इस सिलसिले में ज़िम्मेदारान ने मुख्तलिफ़ हिस्सों में इसका इंतज़ाम किया है। ख़वातीन के लिए स्कूल में और इसी तरीके से मदरसा में या मस्जिद के ऊपरी हिस्से में उनका इंतज़ाम है, और मर्द के लिए जिन लोगों ने हिस्सा लिया था उन लोगों का नीचे मस्जिद हाल ही में फैतुलगंज के लोगों के लिए दाएं तरफ से ले लें अपना इनामात, और बाकी कानपुर के सारी यूनिटी के मर्द लोग वो बाएं तरफ से ले लें अपना इनामात। इसके अलावा जितने लोगों ने भी इम्तिहान लिया था एग्ज़ामिनर मुअल्लिम और मुअल्लिमात, तो मुअल्लिम और मुअल्लिमात उन तमाम के लिए भी इनामात मुकर्रर हैं। इंशाअल्लाह उन तक इनामात पहुंचाया जाएगा। वक्त की कमी की वजह से स्टेज से उन तक इनाम नहीं पहुंचाया जा सका, इसके लिए हम माजरत चाहते हैं आपसे, लेकिन इंशाअल्लाह उनको इनाम पहुंचा दिया जाएगा। और इसी तरीके से ज़िम्मेदारान ने मुख्तसर सा नाश्ता का भी इंतज़ाम किया है। तमाम लोग नाश्ता भी ज़रूर कर लें, उसके बाद ही यहाँ से आप तशरीफ़ ले जाएंगे। और जिन लोगों को भी किसी भी वजह से यहाँ पे इनाम ना मिल सके या अगर उन्हें परेशानी लगे वो अभी इनाम ना लें, तो अपने अपने सेंटर से भी अपना इनाम और सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और मैं अब प्रोग्राम के ख़ात्मे के ऐलान से पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक अंदाज़े के मुताबिक 1000 से ज़्यादा लोगों ने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की, और उसके बावजूद भी बड़ी ही संजीदगी का माहौल आप लोगों ने बना के रखा। ख़ास तौर पर ख़वातीन का हम बेहद ममनून और मशकूर हैं, उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि बड़ी तादाद में ख़वातीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत करने के बावजूद बड़ी ही संजीदगी का माहौल बरकरार रखा, इसलिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। अब नाश्ता मुख्तसर साहब को मिलेगा और उसके बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ मजलिस के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है।
Mm-hmm.